Hello everyone. Today we are going to start out the chapter number 4 of Civics, the Judiciary. Introduction. India has a federal system of governance but a single integrated judicial system. इंडिया में गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम से है पर जुडिशरी सिस्टम एक सिंगल है. पूरी कंट्री को एक ही जुडिशियल सिस्टम एडमिनिस्टर करता है. The judiciary administers justice, interprets laws, protects the natural rights of citizens, and looks into the union and state laws through a hierarchy of courts. Judiciary justice देने का काम करता है, laws का ध्यान रखता है, गवर्नमेंट के नेचुरल राइट्स फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और जो यूनियन और स्टेट लॉज बनाती है उनका भी ध्यान रखता है. The Supreme Court is at the top of this hierarchy, followed by the high courts and the subordinate courts at different levels of judicial system. सुप्रीम कोर्ट सबसे हेड पे आता है, उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स जो स्टेट लेवल पे हैं और उसके बाद आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं. Importance of the judiciary. The judiciary helps to settle disputes whenever there is a conflict between people and the state government, two states or between the state governments and the union government. Judiciary सबके बीच में disputes लड़ाइयाँ settle down करने का काम करती है. The judiciary upholds and enforces the fundamental rights of the citizens of India. Thus, the citizens can move to court if their rights are violated. Judiciary हमारे fundamental rights को protect करती है और अगर इसमें से कोई भी right violate होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं. Supreme Court is the final interpreter of our constitution. It is also empowered to declare a law null and void if it goes against the principles and ideals of our constitution. Supreme Court हमारे constitution का final interpreter होता है. अगर कुछ भी चीज़ constitution के against में जाती है तो वो उस law को null और void declare कर सकता है. Need for an independent judiciary. Parts of our constitution have kept the judiciary independent of the legislature and executive so that it can check the misuse of power by the other two organs of the government. Impartial justice is possible. एक independent judiciary की ज़रूरत क्यों होती है? उसके दो reasons हैं. एक तो legislature और executive अपनी powers का misuse नहीं करे और जो भी justice हो सब impartial हो, किसी भी तरह की partiality नहीं हो. Now the next topic is the Supreme Court. The Supreme Court is as the apex of the judicial hierarchy. Supreme Court सबसे top पे आता है. दिल्ली the national capital is a seat of the Supreme Court in India. इंडिया में Supreme Court दिल्ली में है. It makes the final decisions which are then abided by all the courts of the country. इसके जो भी decisions होते हैं वो final होता है और सभी courts को मानने होते हैं. Composition. The Chief Justice heads the Supreme Court. A maximum of 30 judges assist him. सुप्रीम कोर्ट का हेड चीफ जस्टिस होता है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है और इसके अलावा 30 जजेस होते हैं जो इसकी वर्किंग में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट. हाउ द जजेस आर अपॉइंटेड. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ चीफ जस्टिस इन कंसल्टेशन विद दो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट whom he deems necessary. प्रेसिडेंट जिसको इम्पोर्टेंट समझता है उन जजेस को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से पूछता है और फिर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है. अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस. दूसरे जजेस भी प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस से कंसल्ट करता है फिर अपॉइंट करता है. नाउ द नेक्स्ट इज़ द एलिजिबिलिटी. कौन एक जज की तरह अपॉइंट हो सकता है. क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. Have experience of at least 5 years as a judge of the High Court. हाई कोर्ट के जज का 5 साल का एक्सपीरियंस और at least 10 years as an advocate of High Court या हाई कोर्ट का 10 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस और a distinguished jurist in president's opinion. Term. There is no fixed term of office for the Supreme Court judges. They serve till the age of 65. कोई फिक्स टर्म नहीं होता और 65 ईयर्स की एज तक वो लोग जज बने रहते हैं. Supreme Court judges can be removed by the President on the ground of misuse of office, proven misbehavior or incapacity. President इनको हटा सकता है अगर उनने अपने ऑफिस का कुछ मिसयूज़ किया है, अपनी पावर्स का कुछ मिसबिहेवियर किया है या अपनी कैपेसिटी के बाहर अपने पावर्स के बाहर जाकर कुछ डिसीजन दिया है. The process of removing the Supreme Court judges is called impeachment. जिस प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है उसको impeachment बोलते हैं. The process involves a motion which contains the charge against a judge
इसमें अगर जज ने कुछ गलती की हुई होती है तो उसके अगेंस्ट में एक मोशन पास किया जाता है. दिस मोशन मस्ट बी पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. और ये मोशन कम से कम 2/3 ऑफ द मेंबर्स का पास करना ज़रूरी है जो हाउस में उस टाइम प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं. Next is the jurisdiction of the Supreme Court. Jurisdiction refers to the scope of authority of the Supreme Court to carry out judgments and enforce laws. Jurisdiction का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी पावर है, वो किस अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकता है, जजमेंट कर सकता है और लॉज को फोर्स में ला सकता है. The Supreme Court enjoys the following jurisdiction. Number first is original jurisdiction. The original jurisdiction empowers Supreme Court to hear and decide certain cases in first instance. That is, these cases cannot be heard in any other court. Supreme Court के पास ये पावर होती है कि वो कुछ केसेस फर्स्ट इंस्टेंस में फर्स्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में ही होती है और किसी कोर्ट में इन केसेस की हियरिंग नहीं हो सकती. एंड नाउ सम ऑफ दीज केसेस आर: फर्स्ट, डिस्प्यूट्स बिटवीन टू स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच का कोई प्रॉब्लम है. सेकंड, डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फाइट हो गई है. केसेस विच कंसर्न विद द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नमेंट और एनीवन एल्स, अगर गवर्नमेंट या कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उससे रिलेटेड केसेस. एंड इशू ऑफ रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसके एनफोर्समेंट के लिए फर्स्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में ही होती है. Second one is appellate jurisdiction. It includes appeal against the judgments of high courts. The Supreme Court, being the highest judicial authority, has the power to review the decisions of the high courts and give its own judgment in matters of civil and criminal cases. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो हाई कोर्ट के जजमेंट अगर किसी को सही नहीं लगता है वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है. नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है. इस वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट का कोई डिसीजन सही नहीं लगता है तो उसको रिव्यू कर सकती है, उस डिसीजन को सही कर सकती है और उसकी जगह अपना खुद का डिसीजन दे सकती है. One is the advisory jurisdiction. It empowers the Supreme Court to advise the President on constitutional issues when asked for. Supreme Court के पास ये पावर होती है, अगर प्रेसिडेंट को नीड है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी चीज़ के लिए उससे इन्फॉर्मेशन ले सकता है, उसके एडवाइस ले सकता है. पर ये एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाउंडिंग नहीं होती. प्रेसिडेंट की इच्छा हो तो वो फॉलो कर सकता है, नहीं तो नहीं करता. However, the president is not bound to follow its advice. Supreme Court records and prints all its proceedings and judgments. Thus, it functions as a court of record. Supreme Court अपने सारी प्रोसीडिंग्स जो भी जजमेंट लेता है सबको रिकॉर्ड करके रखता है, सब चीज़ों का रिकॉर्ड होता है. इस वजह से ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के फॉर्म में भी फंक्शन करता है. दीज जजमेंट्स सर्व एज कैन बी साइटेड बाय सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इन द कंट्री. ये जजमेंट्स एक लॉ की तरह काम करते हैं और अगर किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को, हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ज़रूरत होती है तो वो इन डिसीजंस का रेफरेंस दे करके अपने केसेस के लिए जजमेंट दे सकते हैं. Last one is the judicial review. Judicial review is the power of the Supreme Court to examine the validity of laws passed by the Union and states. A law can be annulled if it is found incompatible with the Constitution. Supreme Court judicial review का काम करता है. अगर कोई लॉ जो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है वो सही नहीं लगता है तो उसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकता है. Now next we come up to the High Court. High Court is the highest judicial authority in a state. State में highest पे आता है High Court. The Parliament has the power to establish a common High Court for 2 or more states. 2 और more स्टेट के लिए, 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए वो एक कॉमन हाई कोर्ट भी अपॉइंट कर सकता है. At present there are 24 high courts in India. टोटल मिलाकर के अभी 24 हाई कोर्ट्स हैं. Now composition. Every high court consists of a chief justice and other judges. The number of judges is decided according to the size of the state. Therefore the number of judges varies from state to state. हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और साथ में कुछ अदर जजेस होते हैं उसकी हेल्प के लिए. अब अदर जजेस कितने होंगे वो स्टेट के साइज़ पर डिपेंड करता है. अगर स्टेट बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ जजेस भी ज़्यादा होंगे, छोटा है तो कम होंगे. अपॉइंटमेंट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद. द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट. और बाकी जो जजेस होते हैं वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, उस स्टेट के गवर्नर से और उस स्टेट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करता है. उसके बाद बाकी जजेस अपॉइंट करता है.
एलिजिबिलिटी टू क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट का जज बनने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए. द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन. सेकेंड, शुड हैव 10 years एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के 10 साल के एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 2 or more such courts in succession, या इससे नीचे वाले कोर्ट्स का. इस टर्म द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन सर्व टिल द एज ऑफ 62 तक कर सकते हैं. द प्रोसीजर टू रिमूव द जजेस सेम एज दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीचमेंट के प्रोसेस से हटाया जाता है, सेम प्रोसीजर इनके लिए भी होता है. नाउ नेक्स्ट इज द जुरिस्डिक्शन पावर ऑफ द हाई कोर्ट. द हाई कोर्ट इशूज़ रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए, बचाने के लिए वो रिट्स इशू कर सकता है. सेकेंड, इट पासिस रूल्स ऑन इलेक्शन पेटिशंस एंड अदर इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स, इलेक्शन के लिए, इलेक्शन में कुछ लड़ाइयाँ हो जाती है उस चीज़ के लिए. Next, it hears appeal in both civil and criminal cases against the judgment of subordinate courts and reviews the judgment. जो सिविल एंड क्रिमिनल केसेस छोटे कोर्ट्स में चल रहे थे उनकी जजमेंट के अगेंस्ट में इसमें अपील हो सकती है. रूल्स एंड सुपरवाइजेस द वर्किंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, अपने से छोटे कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनकी जजमेंट को, उनकी वर्किंग को सुपरवाइज कर सकता है. नेक्स्ट इज एडवोकेट जनरल. Each state has an advocate general who is appointed by the governor of that state. हर स्टेट का एक एडवोकेट जनरल होता है जिसको गवर्नर अपॉइंट करता है उस स्टेट का. He is required to advise the state government on legal issues and perform other legal duties as assigned by the governor. वो स्टेट गवर्नमेंट को लीगल ड्यूटीज़ के बारे में, लॉस के बारे में समझाता है और जो गवर्नर और लीगल ड्यूटीज़ बताता है वो पूरी करता है. हिज क्वालिफिकेशंस आर सेम एज द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट की जजेस के लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए सेम इसके लिए भी चाहिए. नेक्स्ट वन इज द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. Each state is divided into various districts. The court which functions in these districts are called as a subordinate court. हर स्टेट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हुआ होता है और जो इन डिस्ट्रिक्ट्स में कोर्ट्स होते हैं उनको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोला जाता है. The here civil and criminal cases which pertain to the district in which the court is formed, वो सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस देखते हैं. सिविल केसेस वाले को बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और क्रिमिनल केसेस वाले को बोला जाता है सेशंस कोर्ट. Types of subordinate courts. First, district judges court. It is the highest civil court in a district. एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाईएस्ट सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट होता है. इट कैन हियर केसेस रिलेटेड टू लैंड, प्रॉपर्टी, मनी, डाइवोर्स, मैरिज, विल एंड गार्जियनशिप. इन चीज़ों से रिलेटेड केसेस वो देख सकता है. इट ऑल्सो हियर्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट्स, जैसे पंचायत है, लोक अदालत है. अगर इनका डिसीजन पसंद नहीं आता है तो इसमें हम अपील कर सकते हैं. इन सम डिस्ट्रिक्ट्स एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज के साथ साथ कुछ छोटे जजेस और होते हैं. नेक्स्ट इज अ कोर्ट ऑफ सेशन जज. It is the highest criminal court in a district. It is presided over by the district judge who is called as a district and sessions judge. ये district का highest criminal court होता है और इसके judge को district and sessions judge बोला जाता है. In the sessions court, criminal cases of murder, dacoity and robbery are tried. Murder से, डकैती से और robbery से related cases यहाँ solve होते हैं. The sessions judge here appeals against the judgment of lower court. इनसे छोटे cases courts के decision के against में अपीलियाँ की जा सकती है. One is the revenue court. It deals with the cases of land records. Land से related चीज़ें यहाँ होती है. It also assesses and collects land revenue from landholders. Landholders से land revenue collect करते हैं. The highest revenue court under the supervision of the high court is the board of revenue. High court का सबसे टॉप रेवेन्यू कोर्ट होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है कोर्ट ऑफ द कलेक्टर. लास्ट वन इज पंचायत कोर्ट्स. इट डील विद द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट विलेज लेवल. विलेज लेवल पे ये केसेस सॉल्व करते हैं. दीज कोर्ट्स वर्क अंडर रीजनल नेम्स सच एज न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी एटसेट्रा. ये इसके दूसरे नाम हैं. 3 or 4 विलेजेस आर क्लब टुगेदर अंडर न्याय पंचायत. न्याय पंचायत के अंडर 3-4 विलेजेस को साथ में ज्वाइन कर दिया जाता है. The sentences of Panchayat court cannot be appealed against, but the parties involved can seek legal remedy in our court. ये जो सेंटेंस देते हैं वो किसी भी कोर्ट में अपील नहीं किए जा सकते, पर अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कोर्ट में जा करके अपील कर सकती है. लोक अदालत. द प्रोसेस ऑफ सीकिंग जस्टिस इज टाइम कंज्यूमिंग एंड मोर एक्सपेंसिव इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री में जस्टिस के लिए प्रोसेस बहुत लंबा है और एक्सपेंसिव है क्योंकि लॉयर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और केसेस बहुत लंबे चलते हैं. इस वजह से फॉर दीज रीजन्स लोक अदालत और द पीपल्स कोर्ट वॉज सेटअप टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस. और इसलिए जल्दी जस्टिस हो जाए, केसेस जल्दी ख़त्म हो जाए, इस वजह से लोक अदालत या पीपल्स कोर्ट सेट किए गए थे. लोक अदालत इज प्रिसाइडेड ओवर बाय अ रिटायर्ड जज विथ 2 other members, यूजुअली अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर. लोक अदालत का हेड एक रिटायर्ड जज होता है, साथ में 2 other members होते हैं. वो लॉयर भी हो सकता है या कोई सोशल वर्कर भी. द डिस्प्यूटिंग पार्टीज पुट फॉरवर्ड
देयर केसेस विदाउट एडवोकेट्स, बिना एडवोकेट बिना लॉयर के वो अपने केस लेकर आते हैं सामने. द केसेस आर सॉल्व थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइज़, उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाता है, उनको समझाया जाता है और केसेस सॉल्व किए जाते हैं. नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लोक अदालत, लोक अदालत के अगेंस्ट में कोई अपील नहीं हो सकती. सो दिस वॉज अ होल चैप्टर. थैंक यू एवरीवन.